H1B वीज़ा है, इस वक्त कहा जाए तो वीज़ा वार शुरू हो चुकी है। इसको रिलेट किया जा रहा है भारतीय लोगों के साथ H1B वीज़ा, क्योंकि 85,000 एक कैप है इसके ऊपर H1B वीज़ा के ऊपर, और उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन है? भारतीय नजात हैं। टोटल जो इसमें से हर साल इसके ऊपर एक कैप मौजूद है, 85,000 लोगों को ये वीज़ा दिया जाता है, जिसमें 72.3% सिर्फ इंडियन इसको एंजॉय करते हैं, बाकी 11.7% चाइनीज़ यहाँ पे आते हैं। The parent weighed in. I'm talking about Donald Trump, the president-elect. He hosted a New Year's party at his home in Florida. The reporters asked him about his position on the H-1B visa. Listen to the reply. To voice up, we have to have the most competent people in our country. We need competent people. We need smart people coming into our country. We need a lot of people coming in. We're going to have jobs like we've never had before. H-1B visas, which allow employers to hire highly skilled foreign workers. Musk, who himself is from South Africa, said that he once had this kind of visa, and he's arguing that Silicon Valley is facing a shortage of excellent engineering talent, as he put it. Restricted H-1B visas in his first term, has said on the campaign trail this time around that he did want to make it easier for educated foreigners to work in the U.S. What I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card to be able to stay in this country. And that includes junior colleges too. Anybody graduates from a college, you go in there for 2 years or 4 years. If you graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. अमेरिका के 20 जनवरी को होने वाले नेक्स्ट सदर ने कहा है कि वो जो H1B वीज़ा है उसके ऊपर उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं बदला, और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो इंडिया से ही ज़्यादा आ रहे हैं। ये अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स इस खबर को आज डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ट्रंप ने मार-आ-लागो के अंदर जो है वो अपनी बर्थ न्यू ईयर पार्टी रखी हुई थी। अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपना दिमाग नहीं बदला, और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए पूरी दुनिया से जो अमेरिका के अंदर आएँ, और ये जो स्मार्ट लोग हैं ये हमारे मुल्क को चलाएं, और ये ऐसे लोग चाहिए। और ये बात ठीक है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो लोग इंडिया से आएंगे, ये बात तो अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। Debate is over H-1B visas, those ones that are reserved for highly skilled foreign workers in fields like math and engineering. Musk, with Vivek Ramaswamy, with David Sachs, who's the incoming AI czar, all of them saying that the U.S. needs these H-1B visas and H-1B workers in order to stay competitive. They also believe that Trump is on their side in this. He said this summer that anyone who graduates from college in the U.S. should automatically get a green card to stay. That Indian H-1B professionals are known for their hard work, tax contribution and law-abiding nature, with very little to no involvement in crimes or even illegal activities. Now, this growing hostility has been fueled by several factors. Public support for the H-1B program. Indians account for about 75% of H-1B visa holders, and their expertise play a very important role in keeping tech hubs like Silicon Valley competitive. Now, back in 2021, Indian tech professionals alone generated $478 billion in economic output and supported 1.6 million US jobs. आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम H-1B वीजा के बारे में चर्चा करेंगे, जो अमेरिका द्वारा विदेशों से उच्च योग्यता वाले टैलेंट को अपने देश में लाने का तरीका है। यह वीजा अमेरिका के IT और साइंस सेक्टर में विकास के लिए अहम है। हालांकि कुछ अमेरिकी कट्टरपंथी इसे देश की नौकरियों के लिए खतरा मानते हैं। वे यह नहीं समझते कि इस टैलेंट की वजह से ही अमेरिका वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना है। अब अमेरिकी थिंक टैंक्स ने यह महसूस किया है कि भारतीय टैलेंट की वजह से ही अमेरिका का विकास हुआ है, और यह उनके देश के भविष्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों का मानना है कि उनके देश में टैलेंट की कमी है। हालांकि भारत के मुकाबले उनके लिए वीजा पाना आसान होता है, क्योंकि रिक्वेस्ट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट छोटी होती है, पर टैलेंट ना होने की वजह से इसका कोई मतलब नहीं है। H-1B वीजे पे क्योंकि उसके ऊपर इस वक्त 3 साइडों से अटैक हो रहा है। कृष्णान जो थे, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीनियर एडवाइजर बनाया गया व्हाइट हाउस में, राइट विंग लोग जो थे उनको वो रेसिस्ट उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे रहे थे। और इसी चीज के अंदर उनकी सपोर्ट के लिए विवेक रामास्वामी आए पहले,
एलॉन मस्क भी आए, उन्होंने इलॉन H1B1 मस्क वीजा जो है, हाँ। वो आए, और उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि मेरी अपनी कंपनी के अंदर कई लोग जो है वो H1B वीजे पर हैं और इट्स अ गुड प्रोग्राम। अच्छा, जब आपने इलॉन मस्क की जिक्र किया है, 4 बड़ी पर्सनैलिटी हैं जो कि खुद H1 वीजे के बेनिफिशियरी हैं, जिसमें इलॉन मस्क भी हैं। इलॉन मस्क खुद साउथ अफ्रीका से कनाडा गए और कनाडा से H1B वीजे पर अमेरिका आए। दूसरा नंबर जो था वो सुंदर पिचाई है, जो कि इस वक्त गूगल के हेड हैं, वो भी H1B वीजे पर आए। तीसरा जो है सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के हेड जो है, वो भी H1B वीजे पे आए, और कृष्णन जो है वो भी H1B वीजे पे आए। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है अमेरिका का। इस वक्त इनकी कैप है H1B वीजे के ऊपर 85,000 लोगों की, जिनमें से आलिया 72.3% वीजे जो है वो सिर्फ भारत इसमें से अवेल करता है। दूसरे 11.7% सिर्फ चाइना के पास जाते हैं। तो इस वक्त अगर, और इलॉन मस्क की अपनी कंपनी के अंदर, टेस्ला के अंदर 700 लोगों के पास H1B वीजा है। तो देखा जाए तो ये आजकल वो बहुत खबर इस वक्त चल रही है, इस वक्त खबरों में है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज H1B वीजे वालों की विक्ट्री हुई है। इसको वीजा वार कहा जा रहा था, आज मैं समझता हूं भारत की विक्ट्री है इसमें, क्योंकि ये मुसलसल वीजे आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, ग्रीन कार्ड लेते रहेंगे, सिटीजन बनते रहेंगे। दूसरा मुसलसल ये मैं कहूंगा कि लोगों को एतराज है, कहते भारत से लोग क्यों आ रहे हैं? भारत से इसलिए आ रहे हैं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है, आप मैथ नहीं पढ़ रहे, आप इस वक्त सिर्फ मरवाना स्मोक कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। अगर आप काम करते तो मैं गारंटी करता हूं उन्हें कृष्णन को हायर करने की जरूरत नहीं थी। आप खुदारा इस तरह सिर्फ मजे लेने की बजाय अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, तो ये इसका हल ये है। So Elon Musk and Vivek Ramaswamy in this particular case, I think, are exactly right. America's ability to attract talent from around the world is basically our economic superpower. The fact that, in particular, we've been able to attract high-skilled immigrants quite reliably in this country over the past century or so is why we have this enduring leadership in science, tech, and business. So just as an example, of all Fortune 500 companies, about half of them were founded by immigrants or the children of immigrants. And of the Nobel laureates, American Nobel laureates who have received prizes for the hard sciences this century, about 40% of them are immigrants who came to this country. So again, this is our superpower, and I'm very glad that Musk and Vivek Ramaswamy recognize it. I very much hope that they are able to influence Donald Trump. अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपना दिमाग नहीं बदला, और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए पूरी दुनिया से जो अमेरिका के अंदर आएं, और ये जो स्मार्ट लोग हैं ये हमारे मुल्क को चलाएं, और ये ऐसे लोग चाहिए। और ये बात ठीक है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो लोग इंडिया से आएंगे, ये बात तो अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इंडिया से आएंगे। और ये चीज़ अभी जारी बात है, इंडिया जो है वो फ़ायदा उठाएगा। ये जो यूएस ने रूल्स रिलैक्स करने हैं, ठीक है जी, लास्ट टाइम जो मैं पढ़ रहा था, ठीक है, वो यही था कि तकरीबन 73% वीज़ास, जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, जो उन्होंने नए रूल्स मॉडर्नाइज करने को, H1B वीज़ा प्रोग्राम उसको मॉडर्नाइज करने के लिए किए। और वो कह रहे हैं जी जो कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली IT कंपनीज जो जॉब वैकेंसी निकालती हैं, ये क्रिटिकल जॉब्स हैं, इसके बगैर अमेरिका ग्रो नहीं कर सकता। इसका नेट बेनिफिशियरी इंडिया होगा, क्योंकि तकरीबन 73% वीज़ा जिन लोगों को मिलते हैं वो इंडियंस हैं। चाइना भी इससे पीछे है। सो इसमें अगर आप देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एलॉन मस्क की साइड ले रहे हैं। सो ये नए साल की भारत को पहली खुशी मिल गई है जनाब। ये आई विश, मुझे कई दफ़ा मैं अमेरिका गया तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों से पूछा, भाई हमें H1B वीज़ा क्यों नहीं मिलता? उन्होंने कहा जनाब मिलता है, हमारे बंदे ही कोई नहीं होते। वो कहते हैं बल्कि हमें तो जल्दी मिल जाता है, बिकॉज हमारा वो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस तेज होता है। इंडिया को वेट में खड़ा होना होता है, बिकॉज इतने इंडियंस होते हैं तो वो वेट लाइन उनकी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानियों की वेट लाइन कम है,